change soon. But before we jump there, मैंने देखा कि जब मैम का सेशन चल रहा था काफ़ी लोग काफ़ी कुछ लिख रहे थे, राइट? कुछ लोग नोट पैड्स में, कुछ लोग मोबाइल के नोट पैड्स में. आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम वन और टू ऑफ यू, what is it that you are taking away after this session? Come on, you will inspire others in the room to take back the same thing. Anyone wants to share? Awesome, thank you. Myself, Nikhil. Can we hear it for Nikhil? So I just like one thing. She told, she said to live with the values, not against the values. Yeah. Awesome. Thank you, Nikhil. गिव एन एग्जाम्पल कि अगर इफ़ यू बिलीविंग कि मुझे 10 kgs कम करना है, डोंट कम कर सकती हूँ क्या, डोंट डाउट योर डिसीजन. Thank you. So good question. From Mumbai chapter. There are three top values which Madam has given to us: your belief, your identity, and your values. This is the key for everybody, actually. Thank you. Tejas Shah. Myself, Rashmi Jain. सबको जय जिनेंद्र. I love that point. I am diabetic and I have diabetes. So we have to change. जो ऊपर से हो रहा है उसे हम चेंज कर सकते हैं, बट जब कोई चीज़ इंटरनली इनबिल्ड हो जाती है तो उसे चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. थैंक यू. I woke up late and I'm still asking the question because we have that. We speak about age and beliefs and stuff. And you spoke about reading and reading. I want to understand how and what is the right time to influence our kids so that they're choosing the right path, the right beliefs, the right value systems, and how we can contribute to that. From your home. It starts from your home. We know the story of Mahabharata. Abhimanyu, of course. It starts from the. So in fact, there was once I was coming back from Europe and this seat is really lady with me, and I happened to start a conversation with her. Israel में कैसा होता है? And I got some beautiful insights when she said, "In our, how come all Israelis are so intelligent? You guys are all intelligent. How is that?" एक बंदा आपका छोटी सी कंट्री है, बट यू गाइस आर लीडिंग द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इन डिफेंस. सो हाउ इज दैट? शी सेड हमारे यहाँ इट्स अ प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू. क्या टेक्स्ट पढ़ने हैं, क्या म्यूजिक पढ़ना है, क्या बॉडी पोस्चर्स होने हैं. देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम ओनली, और उसके बाद तो देयर इज नो स्टॉपिंग, एंड दैट्स हाउ वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑन अर्थ. Thank you so much. One last call. Anyone has any other thought to share? We have one more. Moving next. Monica ji Pergal, Vice Chairman Shri Ramesh ji Jain, Vice Chairman of Jito Hyderabad Chapter Anil ji Jain,
Then Secretary Jito CFE Apex Maniji Jain, Chandni Ji Lalka, please be on the stage. I request Treasurer Shri Bankim Ji Shah. Our skill conveners Sandeep Ji Chagadia, Ashish Ji Shah, Sarita Ji Chaudhary, please be on the stage. Kritika Ji, a big round of applause for them. Please be here. Come on, guys. First, like to invite Shri Anil Ji Oswal, Jito Hyderabad Vice Chairman, to please address the gathering. Good morning, everyone. It's truly an honor to welcome you all to this inspiring platform of Skillothon, especially at Jito Connect in Hyderabad. At the very outset, I extend my heartfelt gratitude to our Jito CFE Apex people who have got this to Hyderabad for the first time. We are really obliged on your front. And I really see a lot of people who are willing to get into this Skillothon, and the subject what has been chosen by Apex is actually empowering everyone with knowledge. So I hope all the sessions would be wonderfully well. People from Apex team and from Hyderabad team have really worked out well. Please utilize this opportunity and take the best out of it. Thank you, everyone. Thank you. Next in line, I would like to invite our Jito CFE Apex Chairman, Shri Ashish Ji Shah, to please address it. Namaste, everyone. Vanakkam. And I'm from Ahmedabad, so kem cho bada. So, really happy to see कि कनेक्ट जैसी बहुत बड़ी इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे पैरेलल सेशंस भी चल रहे हैं, उसमें स्किलथॉन और सीएफई के लिए पूरे हॉल में एक भी सीट बची नहीं है. So big round of applause to everyone because you have chosen the right session to upskill yourself. And I know कि हमें एडिशनल सुधीर जी ने अरेंजमेंट करवा के अभी भी पूरा हॉल भर दिया है और पीछे लोग खड़े हैं, तो आई एम श्योर आपको सुनने के लिए बहुत लोग बेकरार है. तो आई वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम, बट आई जस्ट टॉक अबाउट सीएफई. कि जीतो ने सीएफई का जो प्रोजेक्ट सोचा है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस, इट्स अबाउट अपस्किलिंग एंड व्हाई अपस्किलिंग इज नीडेड. यू नो, ऑल ऑफ यू अग्री कि भाई दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. यस, करेक्ट. सी पहले के जो इन्वेंशंस होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, उससे पूरी दुनिया इवॉल्व हुई, ट्रांसफॉर्म हुई. कैलकुलेटर हुआ, पूरा मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्म हुआ, बराबर. तो वो जो गति से इवोल्यूशन हो रहा था ना, वर्सेस अभी जो बहुत तेजी से, बहुत गति से दुनिया आगे बढ़ रही है, स्पेशली विद एआई. यू नो, इलेक्ट्रिक कार्स आए तो पूरा ही कार इंडस्ट्री चेंज हो गया. अभी हाइड्रोजन आने वाला है. तो हर जगहों पे न्यू टेक्नोलॉजी से दुनिया और हम सब की लाइफ बदल रही है. आप सब लोग मानोगे वो चीज? तो ये बदलती दुनिया में what is the most important thing that will give you success? It is upskilling, right? कोई भी बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप हो, कॉर्पोरेट हो या प्रोफेशनल हो, if you do not upskill, if you do not keep pace with the world, then you will be left behind. So at CFE, at Jito, we are focusing on upskilling. So today's entire day, we are calling it Skillothon Express.
which is skill marathon. Skillathon is basically skill marathon. हम सब लोग दौड़ते हैं तो हम skills के लिए भी दौड़े. वो आज दौड़ेंगे सुबह से लेके शाम तक. So there are many good amazing sessions and I take this opportunity to thank my entire CFE Apex team. हमारे डायनामिक डायरेक्टर इंचार्ज, चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी ने मेहनत करके ये सारे सेशंस क्यूरेट किए हैं और हैदराबाद चैप्टर टीम ने भी साथ मिलकर बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट किया है. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन एंड जस्ट विश यू गुड हैप्पी अपस्किलिंग डे एंड बी ओपन, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सारे ट्रेनर्स को हमने ओरिएंट किया है कि Q&A इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपके दिमाग में छोटा बड़ा मीडियम जो भी क्वेश्चन आता है आप प्लीज पूछो. You are not here for knowledge, you are here for upskilling and upskilling requires clarity. So upskill and again wish you a great productive and successful day. Thank you. That CFE जैसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल रहा है थ्रू जीतो. So can we please hear it for the entire team and the program of CFE. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले आशीष जी आपने बोला है हॉल भरा देखते हैं तो ही समझ में आता है. हम सबको पढ़ने की, हम सबको स्किल एनहांस करने की भूख है, हंगर है. एंड ह्यूमन बीइंग आपको पता है टिल द एंड ऑफ द ब्रीथ इज स्टूडेंट. अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो हम ज़रूर पीछे रहेंगे. CFE इज़ कमिटेड ऑल फॉर आज के टाइम से आपको जोड़ने के लिए, आपको एम्पावर करने के लिए. CFE ने जो आज के सेशन किए हैं, हमारी डायनेमिक IPS तनु जी जैन, उनसे हम जैन वैल्यूज़ के बारे में एक मास्टर क्लास लेंगे. AI इज़ कॉल ऑफ टाइम. AI हर बिजनेस में, आपका छोटा बड़ा प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, इवन एज ए एडवोकेट वी हैव टू ऑल्सो यूज़ द AI फॉर हमें ड्राफ्टिंग चेक कराना है, कुछ करना है. तो ये कॉल ऑफ टाइम है. आप जो भी बिजनेस में हो, आपको बिजनेस करना है बट निगोशिएशन सेल्स स्किल आपके पास नहीं है तो बिजनेस में सक्सेस पाने को कहीं ना कहीं देर लगेगा या टाइम लगेगा. सो ये जो ज्ञान की गंगा CFE ने बहाई है, आप में जितनी ताकत है उतना उसको पीजिए, एब्जॉर्ब करिए और आपके आने वाले लाइफ में उसको यूज़ करिए. मैं CFE की पूरी टीम, आशीष जी इतना सुंदर CFE में सिर्फ यहीं पे आज के लिए नहीं, मैं जीतों के ये 1.5 साल 1 साल हो गया, आने वाले 1 साल की जर्नी के लिए बोलूँगी. बहुत ज़्यादा आशीष जी को पता है, एक स्किलेथॉन हमने स्टार्ट किया चेन्नई में एंड आज भी जो गुरुवार का ज्ञान एवरी 15 डेज से तनु जी जूम पे आता है. यू विल नॉट बिलीव 500 मिनिमम 5 मिनट में हो जाता है एंड Q&A तक 450 लोग होते हैं. ऐसा नहीं कि निकल गए. इतने वंडरफुल सेशन चल रहे हैं. आप सबको भी रिक्वेस्ट है, आपको जहीं से भी लिंक मिले प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए. बहुत अच्छा काम CFE में हो रहा है. स्किलेथॉन एक्सप्रेस हम फिजिकल काफ़ी जगह प्लान आउट है. हैदराबाद टीम का सुधीर जी, अनिल जी, आप सबका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं. हमें अपॉर्चुनिटी दिया टू शोकेस एंड ट्राई टू अपस्किल द मेंबर्स को हम कर पाए. थैंक यू सो मच एंड गुड लक एवरीबॉडी. Thank you, ma'am. Next, I request Srimati Kushali Ji Choldia, Jito CFE Chief Secretary, to please share a few words of wisdom with us. Wholehearted thank you to everyone for being here today and a very big gratitude to you, Dr. Tanuji Jain, for being here today and sharing your thoughts with us. And I thank Director in Charge Jito CFE Apex, Advocate Minalji Khona, Chairman Jito CFE Apex Asif Ji Shah for being here today. I thank the Hyderabad team, Anil Ji Jain, Vice Chairman Hyderabad, and all our Vice Chairman of Jito CFE Apex, Monica Ji Pilgal, Ramesh Ji Jain, Secretaries Chandni Ji Lalka, Mani Ji Jain for being here, Treasurer Jito CFE Apex, Bankim Ji Shah, and our Gujarat Zone CFE Convener, Pramit Ji Parikh, LPCG CFE Convener, Savita Ji Chaudhary, and all our skill conveners, Sandeep Ji Chandalia, Financial Literacy Skill Convener, our Soft Skills Convener, Mani Ji Jain for being here, thank you so much, and AI Skill Convener, Ashish Ji Shah for
arranging such beautiful sessions today, and the energy and the thoughts which you have poured into curate these topics today, and above all the trainers who have agreed to come here and upskill your knowledge and give you more and more. And Sudhir Ji Jain, G2 CFE convener Hyderabad, and a big thank you to Kritika for taking so many efforts and sponsoring today's event. And we thank your company too. Thank you, Kritika. And our secretariat team, Sachin, for taking so much big efforts for doing all the arrangements. And most thank to the entire audience who is present here today. And there is a whole day of upskilling yourself. So be here, do not move from here, and take as much you can. Thank you so much, everyone. Thank you, and thank you to all the leaders for inspiring words and insightful thoughts from all of you. Without further ado, I now invite and request Kritika Ji, our skill convener from Jito Jobs, to please take the stage, introduce our distinguished speaker, and let's get to the moment that we all have been waiting for. Hello everyone. So this morning I was fortunate enough to spend 20 minutes of time with Dr. Tanu Jain, and let me introduce you to this humble woman. So joining us today is an inspiring force in Indian civil service landscape, Dr. Tanu Jain, a dentist by education, a former bureaucrat by profession, and a change maker by passion. She served 7.5 years in the armed forces and civil services, including her role at DRDO. She is the founder of the Thastu ICS, a leading institute guiding aspirants for UPSC with a unique focus on ethics and civilization. Dr. Tanu Jain has dedicated her life to shaping the leaders for tomorrow. Let's welcome the dynamic Dr. Tanu Jain, and thank you for honoring me with this. Thank you. Please welcome. थैंक यू सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबके नाम कुछ नाम मैं गैस कर पाई हूँ। असित जी, मीनल जी, कुशाली जी, अनिल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीतो चैप्टर CFE, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड अरेंजिंग समथिंग विच इज नीड ऑफ द आवर, स्किल्स। तो जब मुझे बुलाया गया तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप कुछ AI पे बोल दो, कुछ तो बोल दो AI पे। मैंने कहा ठीक बात है, जी तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आ रहा है AI, उस पर तो बात होनी चाहिए। फिर मैंने कहा जैन भी है, उन्होंने कहा जैनिज्म पे भी बोल दो। मैंने कहा ठीक बात है, जैनिज्म पे भी बात होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि सबकी सुनेंगे तो कैसे चलेगा, कुछ अपने मन की भी होनी चाहिए, तो मेंटल हेल्थ पे भी बात होनी चाहिए। तो आज हम 3 चीज़ों पे, बड़े बड़े टॉपिक्स पे छोटी छोटी थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो हम यहाँ से ले जा सकें और हमारे लिए लाइफ में हेल्पफुल हो सके, हमें कुछ क्लैरिटी आ सके। तो सबसे पहले AI पे बात करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कितने लोग AI से डरते हैं। उन्हें लगता है जॉब चली जाएगी, बहुत सारी रेवोल्यूशन आ जाएगा, बिजनेसेस चेंज हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। डरते हैं? सच बताओ, हमें आता नहीं है, हम सीख नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे AI, ऐसा है? ओके, हाथ खड़ा करना पड़ेगा, ऐसे मजा ही नहीं आएगा सेशन में। वरना पीछे ना रह जाए। हाँ, पीछे ना रह जाए, वही पीछे रहने का एक डर। हाँ, रेज योर हैंड। गुड। अच्छा, कितने लोगों को लगता है नहीं AI आएगा बहुत बढ़िया हो जाएगा? वेरी गुड। और कितने लोगों को लगता है भाड़ में जाए? भाड़ में जाए, AI आ रहा है तो क्या हो गया? कंप्यूटर भी आया था, कैलकुलेटर भी आया था, पता नहीं क्या क्या आया था। भाड़ में जाने वाले कौन है? नहीं, जो कह रहे कि AI भाड़ में जाए। जो होना है वो तो होगा। देखो, तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है। क्योंकि अब AI आ तो गया ही है,
और जब आ गया है तो कुछ बदलाव तो होंगे ही, लेकिन वो बदलाव कैसे होंगे, कितने होंगे, वो हम पर डिपेंड करेगा कि हमारे जीवन में कितने बदलाव हो रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के आने से। कुछ बाहर बदलेगा और कुछ अंदर बदलेगा। दोनों ही एनवायरनमेंट्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ इवॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ इवॉल्व करना पड़ेगा। एआई बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया अवेयरनेस, आप जहाँ बात करो वहाँ एआई है। कूड़ा उठाने की जो व्हीकल है उसमें एआई लग रहा है। वो कह रहे हैं हम ट्रैक करेंगे कि कितना कूड़ा उठा, कितना नहीं उठा, कितना उठना चाहिए था। यानी कि सब चीज में एआई। कितने लोगों ने स्मार्ट वॉच पहन रखी है? एआई। फोन, गूगल सर्च, जीपीएस, सब एआई। तो अगर कोई सोच रहा है कि वो एआई यूज नहीं कर रहा तो वो सच नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में इतना एआई यूज कर रहे हैं जितना हमें अंदाजा भी नहीं है, और हम एआई को इतना डेटा दे रहे हैं जितना कि हमें अंदाजा भी नहीं है। थोड़े समय में कुछ कंपनीज, कुछ एजेंट्स, कुछ मॉडल्स, कुछ एल्गोरिदम्स हमें हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हम कैसे हैं? हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मल्टीपल लेवल्स पे सोचते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर ही ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता कि हम सोचते हैं। ये बात पता है ना? हमें ही नहीं पता हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है। वो इनसिक्योरिटीज, वो पैटर्न्स, वो थिंकिंग की बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे। क्या चीज़ हमें पसंद आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी, किस चीज़ को हम डरते हैं, किस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किस चीज़ के लिए हम भागते हैं, किस चीज़ से हम रुकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे अंदर, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ बात है जिसे हमें, उन नॉट्स को हमें खोलना है। लेकिन वो पैटर्न्स बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो जो पैटर्न्स जो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हें एआई कर लेता है कैच। अब एआई हमें हमसे बेहतर जानता है, तो आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या चीज़ पसंद आएगी। आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, वाइफ और हस्बैंड को नहीं पता आपको क्या पसंद आएगा, लेकिन एआई को पता है आपको क्या पसंद आएगा। यानी कि इट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेरी वेरी क्लोज पार्ट। तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही ऑफ कोर्स, बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि बायसेस। एआई है तो मशीन ही, हम उसमें जो डेटा डालेंगे उसी को प्रोसेस कर देगा। वो कुछ नया कर सकता है क्या? डेटा डालना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। और वो जो बायसेस हैं वो हमारे बिजनेस में, हमारी चॉइसेस में, हमारी सेल्स में, हमारी सारी चीज़ों में, लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। जैसे कि हाल ही में यूएस में पुलिसिंग के लिए एआई को यूज़ किया गया, इंडिया में भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा शुरुआत के लिए, पर वहाँ पे बड़े लेवल पे यूज़ किया गया तो पाया गया कि ब्लैक लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि पहले का डेटा ये बताता था कि ब्लैक्स वर हैविंग मोर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो उसने वही लिया, वही पैटर्न लगा दिया। सेम इन जुडिशरी, सेम इन ऑल द प्रोफेशंस, देयर आर लॉट ऑफ बायसेस। यानी जब हम एआई यूज़ कर रहे हैं हमें एक चीज़ के बारे में बहुत ध्यान रखना है, what bias, what data and what algorithm it is using। तो क्योंकि एआई ने बताया है इसलिए सीधा नहीं मान लेना, अपना दिमाग चलाना है। We have to be more aware of the biases it may have। और उसको सही डेटा देने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर जेन्स का डेटा, बिजनेसेस का डेटा, ये सब नहीं जाएगा तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं आएगी।
यानी कि राइट डेटा इज ऑल्सो right pattern generation in AI is also very important, especially for people and businesses. This is one problem. Second problem, AI is making us dumber. Big time dumb. कंप्यूटर आया तो लोगों ने लिखना कम कर दिया, कैलकुलेटर आया तो कैलकुलेशंस बंद हो गई, है ना? फिर जीपीएस आया तो रास्ते भूल गए। किसको बहुत सारे रास्ते याद हैं? अपने फ्रेंड के घर का, नानी के घर का। आधे लोगों को तो अपने घर का नहीं याद है। I tell you, I have seen so many people अपने घर जाते हुए भी जीपीएस लगाते हैं, और हर बार लगाते हैं, रोज लगाते हैं। ट्रैफिक ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ट्रैफिक चेक के लिए लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप वेट करो, 1-2 साल में भूल जाएंगे। भूल चुके। पहले बहुत सारे नंबर याद रहते थे, आपको पता है? देखा किस किस को अभी भी 15 से ज्यादा नंबर याद है? फोन नंबर, रेयर ब्रीड। लैंडलाइन होते हैं पहले। अच्छा, पुराने नहीं, अब के किसी को याद नहीं है, सिवाय अपने 4-5 फैमिली मेंबर्स के। किसी का नंबर याद नहीं है। अगर गलती से फोन भूल जाओ, पूरी फैमिली कहीं जाए और वो फोन भूल जाए, तो उसके बाद किसी से कांटेक्ट कर भी नहीं सकते। क्योंकि फोन नंबर ही किसी के याद नहीं है। घर का एड्रेस वैसे ही नहीं पता। यानी कि हमारी एबिलिटीज बहुत कम हो रही है, और खास करके अभी चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लाउड, जेमिनाई, ये सब आने के बाद जैसे ही कंटेंट जनरेशन या जनरेटिव एआई पे हम आए हैं, उसके बाद अब हमने सोचना भी बंद कर दिया। खास करके यंग जनरेशन। पुरानी जनरेशन तो फिर भी सोच रही है, क्योंकि उसे लग रहा है अब क्या सर्च करेंगे, कौन टाइप करेगा, है ना? लेकिन यंग जनरेशन से आप कुछ भी बात बोलो, कुछ भी सर्च करने के लिए बोलो, रिसर्च करने के लिए बोलो, वो जाएंगे चैट जीपीटी पे जाके एक रिपोर्ट बना के ले आएंगे, बड़ी सुंदर। और आप 10 बच्चों को बोल के देखो, अपनी कंपनी में एक्सपेरिमेंट करना, मैं कर चुकी हूँ। आप कंपनी में बोलना 6 लोगों को इस एक टॉपिक पे कुछ बना के लाओ, सेम बना के लाओ, कुछ भी कर लो वो बदला, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स निकाल वही रहेगा। यानी सोचना समझना भी कम हो गया है, और कम होता जा रहा है। हम तो फिर भी कुछ सोच रहे हैं, हमसे छोटे वाले 2 साल वाले हमसे कम सोच रहे हैं, और कम। और जो जनरेशन जेन ज़ी है, वो तो सोच ही नहीं रही, उसको लग रहा है जब जरूरत क्या है, क्यों सोचना है जब ये दे रहा है सब जवाब, दिमाग क्यों लगाना है। और जिस चीज को हम लगाते नहीं है, यूज नहीं करते, वो क्या हो जाता है, जंग खा जाता है, वो बंद हो जाता है। तो आज से 5, 15, 20, 25 साल बाद जो जनरेशन होगी, आपको क्या लगता है, एक बैटिंग करते हैं आज, वो हमसे स्मार्ट होगी या हमसे डम होगी? नहीं, टूल तो डिपेंडेंस होगी ना। किसी दिन सोलर फ्लेयर हुआ, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गए तो now it depends the choices we make. Till the time we are using these tools as tools, fine, not a big problem. यूज करने चाहिए, कंप्यूटर आया, यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे, सबसे बड़ा फोमो। तो सीखना तो है ही, अडॉप्ट भी करना है, यूज भी करना है, लेकिन इज इट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर ब्रेन? डोंट मेक इट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर ब्रेन। थिंक, क्योंकि किसी व्यक्ति ने ही तो बनाया उसे, कोई इंसान ही तो डेटा डाल रहा है,
कोई इंसान ही तो एल्गोरिदम बना रहा है। अगर आप उसको अपने से अलग नहीं रख रहे हो, उसे टूल की तरह नहीं रख रहे हो, उसे अपनी पर्सनालिटी का, अपने सोचने का हिस्सा बना ले रहे हो, तो यानी कुछ समय में जैसे एआई मैनिपुलेट हो सकता है, वैसे ही जो ऊपर बैठे एल्गोरिदम्स बना रहे हैं वो आपको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और कर लेंगे और करेंगे। तो इफ यू डोंट वांट टू गेट मैनिपुलेटेड देन थिंक कौन सा एआई यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, उससे फायदा क्या होगा, उसको हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूज ना होके उतना अपने लिए उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सीखना तो पड़ेगा, बट विद द अंडरस्टैंडिंग इट्स अ मशीन, इट्स अ टूल, नॉट योर रिप्लेसमेंट। ह्यूमन इंटेलिजेंस विल रिमेन सुप्रीम एंड इट शुड। और खास करके एक बड़ी अच्छी बात यह कि जब सारे डम होंगे तो कुछ लोग जो डम नहीं होंगे अंधों में काना राजा। तो अगर आप अभी स्मार्ट नहीं भी हो, यू हैव बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट बने रहने की, होने की। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब सारे लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट वो कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस समय पे कोई तो कंटेंट जनरेट भी करेगा। सो यू हैव टू बिकम अ generator, not just a consumer. If you have to work on AI, अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी ये AI के सर्वर्स हैं, ये कहाँ पर हैं? बाहर, वेस्ट। एल्गोरिथम्स कौन डिजाइन कर रहा है? कहाँ? बाहर? एल्गोरिथम्स पे काम नहीं हो रहा है, एजेंटिक जेनरेटिव एआई पे काम हो रहा है। वी आर यूजिंग देयर एल्गोरिथम्स, दे आर यूजिंग देयर कोर टेक्नोलॉजी, और इंग्लिश लगा देते हैं, कन्नड़ लगा देते हैं, तेलुगु लगा देते हैं, हिंदी लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। द आइडिया इज तुम डेटा दो, बस यूज करो, आदत डालो। So it's good, but I'm not saying it's bad. Agentic AI is going to change a lot of things. जिन चीज़ों के लिए आज हम बहुत डिपेंडेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, it's going to help. But we should also work for the core technology. क्योंकि जब तक वो हमारे पास नहीं है, जब तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, as a nation, as a community, as a business, we are dependent. And this dependence is nearly like AI slavery. हम जैसे कंप्यूटर्स और आईटी में बन गए थे, क्या बन गए थे हम लोग? बैकएंड। एआई के लिए भी हम लोग एक बैकएंड डेवलपर्स बन जाएंगे, डेटा कलेक्टर्स बन जाएंगे, एजेंटिक जनरेटर्स बन जाएंगे। तो we have, of course, not everybody can work on that core technology, but whoever can, if you have the means, as a community we have, let's work on that. The core technologies, the GPUs, creating those models and algorithms. और ये तो हुई AI की बात। तो AI में हमारा टेक अवे क्या है कि काम तो करना है, सीखना है। क्योंकि जितनी जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी हम उसे अडॉप्ट, एक्वायर और एनहांस कर पाएंगे। अडॉप्ट, एक्वायर एंड एनहांस, तीनों चीजें कर पाएंगे हम लोग। तो एआई के लिए हमें कब स्किल होना है? अभी। वी डोंट हैव टू वेट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। एआई का हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उसे यूज करने लगेंगे यू विल रियलाइज ओ एवरीवन इज वर्किंग ऑन द सेम थिंग, डिफरेंट नेम्स। बस इसमें से बेस्ट वाला यूज करना है। नए यूज केसेस आ रहे हैं एवरी टाइम।
So you have to find the relevant use cases. किस टेक्नोलॉजी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो किसी को समझ नहीं आ रही होती, वहीं तो आदमी डरता है और वहीं तो कहता है खरीद लो. उसी के लिए तो कहता है खरीद लो. जो चीज़ सबको समझ आ जाए, आसान हो जाए, उसके लिए कभी कोई आपको पैसे देगा? कभी नहीं देगा. So it's an opportunity. You have to work on that. So youngsters sitting here, learn it. Lot of courses, lot of things are there. Learn it. एक बार बैठो, करके देखो. It's all do and learn, do and learn, do and learn. This is it. लेकिन जैनिज्म में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे एआई और जैनिज्म बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं. ऐसा लगता है कि AI is contradictory to Jainism. How many of you think they are contradictory? They are in line? ठीक है. I think it depends. They are not contradictory. Are they in line? No. जैन के वर्ड में ही AI है. जैन के वर्ड में ही AI है. Jainism stands for some core principles. अनेकांतवाद. किस किस को पता है अनेकांतवाद? दो चार लोग ऐसे हाथ उठा रहे. नाम तो सुना है. ठीक है, मैं फिलॉसफी पढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोर में ना जाते हुए ऊपर से बात बताती हूँ. अनेकांतवाद कहता है कि किसी भी चीज़ को देखने के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. हर चीज़ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते ही हैं. जैसे कि अगर हम इस माइक को ऊपर से देख रहे हैं तो ये इस रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसे तोड़ के अलग अलग एटम्स को देखेंगे तो वो किस रंग के होंगे? We don't know. क्योंकि एटम्स का रंग होता है क्या? You understand? हर चीज़ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं. और क्योंकि हम लोग कार्मिक पार्टिकल्स या कर्म पुद्गल से हमारी आत्मा ढकी हुई है, हमारा ज्ञान ढका हुआ है. जैसे बल्ब जला हो, उस पर बहुत सारे कंबल पड़ जाए तो क्या रोशनी बाहर आएगी? रोशनी नहीं आएगी ना बाहर. तो जब रोशनी नहीं आ रही तो उसी तरह से ज्ञान हमारा बाहर नहीं आ रहा है. हम समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ें. और जब समझ नहीं पाते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ों का, सच्चाइयों का, रियलिटीज़ का, तो हम खुद ही में परेशान रहते हैं. हमें कोई परेशान करता नहीं है. हम खुद अपनी इग्नोरेंस और कंफ्यूजन में परेशान होते हैं. हम खुद बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं. यानी कि जैनिज्म कहता है कि आप उन सारे एस्पेक्ट्स जिनको जानते हुए नहीं जानते, किसी को मना मत करो, किसी को रिजेक्ट मत करो. यू कीप इट एज अ पॉसिबिलिटी कि ये भी हो सकता है किसी देश काल पात्र से. यानी कि किसी एक देश काल पात्र के अनुसार वो भी सत्य हो सकता है. यानी कि अगर हम इस बात को समझें अपने AI के एक्सपीरियंस पे, तो AI भी एक सत्य है जो कि देश काल और पात्र यानी कॉन्टेक्स्ट, डूअर, सब्जेक्ट, इन सब के अनुसार एक सत्य है. तो जैनिज्म का मानना है जब सारे एस्पेक्ट्स आपको किसी चीज़ के पता चल जाते हैं तब आप केवली हो जाते हैं. तब आप क्या बन जाते हैं? केवली या केवल ज्ञान हो जाता है. यानी आपने सारे कंबल हटा दिए, सारे कर्म पुद्गल हटा दिए, और जो ज्ञान हमेशा से था हमारे पास वो हमें मिल गया. बात समझ में आई? ज़्यादा गहरी तो नहीं हो गई? पक्का? यानी कि जो AI है वो भी तो एक सत्य है. उसे जानना किसकी जिम्मेदारी है? बिकॉज जैनिज्म टॉक्स अबाउट लर्निंग. ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान हमें सारा चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चाहिए और हर चीज का चाहिए. तो AI is not contradictory to any Jain principles. First, it opens possibilities, and Jainism stands for all possibilities. First. Second,
हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अहिंसा, भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा, यानी हमारे इंटेंशंस अहिंसक होने चाहिए और हमारे कर्म अहिंसक होने चाहिए, किसी को दर्द कष्ट हम ना पहुंचाएं। अब एआई के आने से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी तो दर्द कष्ट होने के चांसेस हैं, यानी कि अगर हम उसे पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, अगर हम उसे अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छे टूल्स बनाएं, अच्छे तरीके से उसे यूज़ करें, लोगों को ट्रेन करें, लोगों को उसके विषय के अंदर एक कहते हैं एआई रेडी कर दें, तो क्या हम बहुत सारी हिंसा बचा नहीं लेंगे? बचा लेंगे, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस बचा लेंगे। दैट्स इट। ये भी हमारे जैन प्रिंसिपल्स पे उतरता है। और अगर हम अहिंसा की इंटेंट से बनाए हुए एआई टूल्स, एआई एजेंट्स, एआई बिजनेसेस पे काम नहीं करेंगे तो हिंसा वाले तो करेंगे। तो फिर वो जो हिंसा वाले टूल्स, एल्गोरिदम्स, एप्स, डेटा और ये सारी चीज़ें हैं, ये किसको इन्फ्लुएंस करेंगी? अहिंसा को, हमारे ही बच्चों को, हमारे यूथ को। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू गिव द राइट कंटेंट टू द टेबल। वैसे मैं एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ, एक्सीडेंटल इसलिए क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, वो बीच में कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन जब भी कभी हम कंटेंट बनाते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि मुझे बनाने का शौक नहीं, मुझे पता है क्या लगता है, लेकिन सही बात जानी तो चाहिए ना। क्योंकि अगर सिर्फ खराब कंटेंट ही इंटरनेट पे जाएगा तो लोगों की मजबूरी है वही देखेंगे। अगर कुछ अच्छा जाएगा ही नहीं तो वो अच्छा देखेंगे कैसे? तो अच्छा लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी। We all are responsible for that. So Jainism is absolutely in line, and it should be for common use, अपरिग्रह। Common use, सबके भले के लिए बनाए। The thing should be for common use, अपरिग्रह। And lastly, the mental health. This AI, Jainism, इन सबसे बड़ी ना बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरती हैं। डिलेमाज रहते हैं, कंफ्यूजन्स रहते हैं बहुत सारे, क्या करें क्या ना करें। ऐसे डिलेमाज हुए, मटीरियलिज्म की तरफ जाएं, धर्म की तरफ जाएं, है ना, बहुत सारा पैसा कमाएं या सब छोड़ दें, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या बिजनेस बनाएं, दोस्त रखें, लेकिन दोस्त रखते हैं तो टाइम चला जाता है, फिर उससे ध्यान हट जाता है। बहुत सारे डिलेमाज हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में भर जाते हैं, क्या करें। कोई कहता है कि खुद पे ध्यान दो, फिर जैसे ही आप खुद पे ध्यान देने लगते हो सब लोग कहते हैं ये तो सेल्फिश है। आप कहते हो दूसरों पे ध्यान दो, दूसरों पे ध्यान देने लगते हो तो वो कहते हैं तो पीपल प्लीजर है। तो आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देयर आर लॉट ऑफ डिलेमास, और ये सारे डिलेमास हमारे दिमाग पे एक वॉर की तरह, बैटल की तरह काम करते हैं। सो देयर इज एन इंटरनल बैटल विच ऑलवेज गोज ऑन। तो अगर हमारे ही अंदर दो लोग लड़ रहे हैं तो ग्रो कर पाएंगे हम? हमारे ही अंदर दो लोग लड़ रहे हैं, हमारे ही दो विचार लड़ रहे हैं, हमारी बॉडी में ही कंसिस्टेंसी नहीं, हमारे दिमाग में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जब एक दिशा में चल ही नहीं रहे तो हमारे ज़्यादातर काम हाफ हार्टेड होते हैं। हम किसी को प्यार भी करते हैं तो कैसे करते हैं? हाफ हार्टेड। बिजनेस भी करते हैं तो कैसा करते हैं? हाफ हार्टेड। हाँ करना है, करना ही पड़ेगा वाली सिचुएशन में। So this half-heartedness is very detrimental for mental health, and it is better whatever you choose, have a clear boundary. कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ गलत सही नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें गलत सही नहीं है। You have to make a choice, but
एंड यू शुड नो व्हाट इज योर चॉइस. आपको पता होना चाहिए मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ऐसा करूँगी. उसमें बहुत सारे लोग खुश होंगे, बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि सबको खुश करने तो आए भी नहीं है दुनिया में. आए हैं क्या? कौन कौन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जन्म लिया इस दुनिया में? कोई है? कर भी नहीं पाओगे. So we have to make a choice. So make some choices in life. Don't always be like बैंगन लोटा. हाँ, make some choices कि ये करेंगे, ठीक है? अब सही होगा गलत होगा जो होगा देखा जाएगा, बट ये करेंगे. I have made this choice. I will work like this. I will do like this. So make some choices. And second, only and the last principle that we will talk about today is, उसको एक स्टोरी से समझेंगे. एक बार एक पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी थी. एक बार एक पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी थी? 4. उसमें से 3 ने डिसाइड किया कि हम उड़ जाएंगे. अब कितनी बैठी हैं? बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं. यस, डिसाइड करना करना बड़ी अलग अलग चीजें हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, डिसाइड तो बहुत चीजें होती हैं, एक्शन नहीं होता. तो द मोमेंट यू डिसाइड, आई वुड से डोंट टेक टू मच पेन. क्या डिसाइड किया, ये किया, वो किया. टेक एक्शन. Problem is overthinking. How many of you are overthinkers? Anyone who is not an overthinker? दो चलो बोलो. उठाए नहीं उठाए, थिंक करके बता रहे हैं. Problem is we think too much. इससे ज्यादा जल्दी तो काम हो जाता है. तो अगर आपको कुछ करना है कर लो, पता चल जाएगा गलत है सही है. जितने में तुम्हें डिसाइड करोगे कि करना क्या है, जितना टाइम उसमें वेस्ट करोगे उतने में तो काम हो जाता है. उतने में तो पता चल जाता है ये करना भी था नहीं करना था. तो या तो 2 लफेड़े पड़ जाएंगे, या फिर आपको समझ आ जाएगा ये मेरे लिए है. बट टेक एक्शन. डोंट ओवरथिंक. मोस्ट पीपल डोंट लूज because they can't do it. Problem is they don't do it. बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, करते ही नहीं. कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है. हो सकता है मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझसे ज्यादा अच्छी बोलने की कैपेबिलिटी भी हो. वेरी मच पॉसिबल. पर बोले ही. इसलिए शायर ने कहा था कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. कुछ ना होगा तो तजुर्बा. डू इट. टेक एक्शन. ज्यादा नहीं सोचो. एंड विद दिस आई विल एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल शेर. मैं अपने शेर याद दिला दिया तो है ना. बिना इरशाद के मैं बोलती भी नहीं. ऐसे नहीं, अच्छे से. ओके, अब ठीक है. सो ताउम्र मैं ख्याली भूतों से लड़ता रहा. ताउम्र मैं ख्याली भूतों से लड़ता रहा. अगर मैं ना डरता तो क्या शान से जीता, क्या चैन से मरता. थैंक यू. So the idea is we should not fight with this khayali bhoot, because a lot of fears that you have today will never come true. 99% of our fears never come true. तो ज़्यादा डरो नहीं, करो. Thank you so much. जय झूलेलाल. थोड़ा टाइम हो तो क्वेश्चंस किसी के. we should yes. Namaste. Can you help me to like
understand how do you, I thought the session was on ethics. So it is bit thick, like making a choice between two wrongs, for example. Yes. Or two bad decisions, which is a better one. So how do you go, what's the... Wrong for whom? Wrongs as in something which is not ethically correct. That's what I... है ना, तो स्पिनोजा ने बोला, अपनी एक किताब है उनकी, एथिक्स के नाम से ही है उनकी किताब, तो उन्होंने बोला कि दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि बाढ़ अच्छी है या बुरी? बुरी है? बुरी है। किसके लिए बुरी? खेत है जिसका, उसके लिए बुरी है। लेकिन मछली के लिए बहुत अच्छी है। अगर बाढ़ नहीं आएगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो मछली तो मर जाएगी, और खेत के लिए बहुत अच्छी है। और जो आदमी उस पूरे एरिया में नहीं रह रहा, जैसे आपके लिए कैसी बाढ़? Indifferent. It doesn't matter. So whenever we are evaluating something as right and wrong, we have to be very very sure for whom. बहुत सारी चीज़ों को हम अपने लिए गलत बताते हैं, लेकिन असलियत में वो गलत और सही की कैटेगरी में होती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को जब वो हमारे ऊपर आती है तो हम उसे गलत बता देते हैं, दूसरे के ऊपर आती है तो she deserved it, he deserved it. हाँ, तो इसलिए we have to be very sure. The word universe, yes. Everyone, please be here till 2 p.m. Thank you so much for coming, and मैं आपको YouTube पे भी follow करा. I have seen your London Talk video, Raj Saman video. I don't have any question. I just wanted to say कि अभी आपने कहा don't overthink, just do it जो करना है. I wanted to take one photo with you now. I request the crowd to stay back here for another 10 minutes. This is the power of doing. Which automation do it better way. Don't they are not upskilled. So how I overcome my guilt or that thing. मोटिवेशन या फोर्स, तो जो मोटिवेटेड होके काम नहीं करेगा वो फोर्सफुली करेगा। वो आज स्किल नहीं करेगा, 2 साल बाद करेगा। करना तो सबको कंप्यूटर यूज करना पड़ा, सबको करना पड़ा। मेरे दादाजी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में थे, तो वो मुझे बताते हैं कि जब कंप्यूटर आया, बहुत सारे उनके कलीग्स कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाए बहुत समय तक। क्यों? कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो अपने रजिस्टर पे ही काम करेंगे, कंप्यूटर नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे उनकी पोस्टिंग्स खराब होती चली गई, क्योंकि जिसे कंप्यूटर आता था वो ऊपर की पोस्ट पे जाता था, क्योंकि मिनिस्टर को भी तो पोस्ट वो आदमी चाहिए जो कंप्यूटर चला सके। जिन कंपनीज ने नहीं किया वो कंपनीज आगे चली गई, जिन्होंने नहीं किया वो पीछे रह गए। So I am currently working on, so I am a teacher of UPSC, but I am currently working on a project for small scale industries and AI and training and their data and management. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे अब तो होगा तो सही, बात ये कि हम करें या कोई और, काम तो होगा। Change is the only constant. Yes, we will have to work on it. We will have to. I think a lot of myths and misunderstanding जो AI के बारे में थी हम लोग की, काफ़ी चीज़ें बहुत clear, especially आपने जो बात बताई using the right data to feed into the AI, using AI responsibly, right? I think it's something that we all take back with us today. So thank you. We'll just take one more minute. We would like to felicitate you, and I now invite Asid ji, Meenal ji, and Perfect start for skill. Okay, sir. Come close. Yeah, look here. I request CFE team, please come for a group photo. Yeah, look here. Okay, sir, look here. Ma'am, smile.
1 second. Yeah, done. जो नहीं आया वो यही से एडिट होके लगा Welcome back. Are you all excited? Excited for the upcoming sessions? What are you most excited about? Negotiation, sales. सब जेन है, धंधा तो चाहिए, सेल्स सबसे पहले, राइट? यस. हमारी दुनिया निरंतर बदल रही है. टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और एक्चुअली सुबह ना हम एक वीडियो प्ले करना चाह रहे थे जो हुआ नहीं, एंड अब वो वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रहा. सो लेट्स गो हेड, लेट्स फर्स्ट वॉच दैट CFE वीडियो which sets the tone, which gives us more insight. हमारी दुनिया निरंतर बदल रही है. टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशंस की इस तेज रफ्तार में चाहे आप एक स्टूडेंट हो, होम मेकर, एंटरप्रेन्योर या प्रोफेशनल, आज के कंपेटिटिव युग में निरंतर सीखना और खुद को अपग्रेड करना ही सफलता की कुंजी है. जीटो सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपके आज और आने वाले कल को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित है. हमारा मिशन है हर सदस्य को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना और ज्ञान एवं कौशल के नए आयामों तक पहुंचाना. हमारा विजन है संपूर्ण समाज को कौशल विकास, ज्ञान और सतत प्रगति के अवसरों से सशक्त बनाना, जिससे वे आने वाले समय की आवश्यकताओं को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें और हर कदम पर सफलता प्राप्त करें. CFE का लक्ष्य है नॉलेज पार्टनर बनकर जितो के विभिन्न प्रोजेक्ट्स, विंग्स और चैप्टर्स की स्किलिंग आवश्यकताओं को समझना, कौशल की कमी यानी स्किलिंग गैप का विश्लेषण करना और प्रभावशाली तथा परिमाणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना. हमारा उद्देश्य है हर कदम प्रगति की ओर, स्किल फॉर सक्सेस. भविष्य की इस यात्रा में CFE आपका मार्गदर्शक बनेगा ताकि आप अपनी एजुकेशनल, फाइनेंशियल और सोशल परिस्थितियों से परे हर क्षेत्र में इनोवेशन और सक्सेस की ओर अग्रसर हों. आइए CFE के साथ जुड़कर न केवल आज बल्कि आने वाले कल के लिए भी अपने कौशल को संवारें और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं. स्किल फॉर सक्सेस. Thank you. So like we promised in the morning, it's going to be a power pack day, a power pack session coming your way on mastering your sales and negotiation skills. So without further ado, I would now like to invite our coach Mani Jain ji to please take the stage and introduce our next speaker, Mr. Amrut Bhatt. Hi, good afternoon all. हाँ, so खाने के बाद सोना नहीं है. हमारे जो next speaker है, he'll make sure that you guys don't go into food coma. But it's my privilege and honor to announce the next speaker of the day, Amrut Bhatt. Amrut is a maestro in sales and sales communication coaching.
and consulting. He's a 2-time world record holder, a TEDx speaker, an author, and an entrepreneur. He has over 14 years of experience and has conducted more than 3,500 sessions, which includes educating more than 2 lakh people across national and international platforms. He has worked with brands like SBI, HDFC, Tata International, Audi, and more. And he has over 100K followers on Instagram. And we would like to play an intro video of Amrut. And so when he comes, probably I'll have to thank him because he was kind enough to accept our invitation to come into Jito Connect for all of you. So please, can we have the video, please? And yep, thank you. Hello. My name is Amrut and I welcome all of you to this amazing session. Thank you so much for being here. I see a lot of carbohydrate expressions. All right. How are you guys doing? Brilliant. So we're going to have this session in an interactive way. Okay, it's going to be a 2-way session. So requesting everyone to please stand. Please stand. All right. The track, the happy track. Okay, the happy track. Okay, there we go. Brilliant. Okay. And